السلام علیکم۔ کاسٹ سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب برطانوی فوج نے ہندوستان کے طول و عرض میں اپنے پنجے اچھی طرح گاڑ لیے اور برطانیہ کے لشکر ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں داخل ہوئے تو راجپوت اور مغل شہزادے مختلف بھیس بدل کر زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے مختلف پیشے اختیار کر لیے۔ کوئی لوہار بن گیا تو کسی نے تیل کے کولوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا، لیکن جب پکڑے جاتے تو ڈٹ کر کہتے کہ ہاں میں راجپوت ہوں، ہاں میں مغل ہوں۔ اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا جاتا۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ ایک بار ایک مغل شہزادہ پکڑا گیا۔ برطانوی فوج کے افسر نے پوچھا کیا تم مغل ہو؟ شہزادے نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس کے بعد مغلوں کا قتل عام بند ہو گیا۔ ایک صدی کی طویل خاموشی چھا گئی۔ آج کی ہماری ویڈیو تیلی برادری کی تاریخ پر ہے۔ کیا تیلی کوئی قوم ہے یا کوئی برادری ہے؟ تیلیوں کو ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ تیلیوں کے طریق کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ویڈیو پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو مل سکے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تیلی کا لفظ سنسکرت کے لفظ تیلیکا یا دم سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بیجوں سے دبا ہوا تیل۔ یہ برادری تیل کے روایتی صنعت کار ہیں۔ تیلی جو مسلمان ہیں پاکستان اور شمالی ہندوستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ہندوستان میں تیلی کی اصطلاح ہندوؤں میں ایک کاروباری طبقہ کی ہوتی ہے۔ اسلام قبول کرنے والے تیلیوں کو روشندار یا تیلی مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہندو تیلی کا نام تل ساہو اور مسلمان تیلی کو تیلی ملک کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تیلی ایک برادری ہے، نہ کہ کوئی قوم یا قبیلہ۔ ہاں البتہ اس برادری میں بہت سی اقوام پائی جاتی ہیں، خاص طور پر راجپوت قبیلوں کی اقوام جیسے زیادہ تر ملک کہلانے والے بھٹی تیلی ملک، کھوکھر رامگڑھ تیلی ملک، چوہان تیلی ملک، رٹھور تیلی ملک وغیرہ ایسی قومیں ہیں جو تیل کے کاروبار کرنے کی وجہ سے تیلی ملک کہلاتے ہیں۔ پنجاب کے بعض مسلم تیلیوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ بابا ہسو کی نسل سے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تیل نکالنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا اور تاریخ میں پہلی مرتبہ تیل نکالا تھا۔ ان کی روایت کے مطابق ان کے آباء و اجداد لقمان کو بائبل کے بادشاہ ڈیوڈ کے پاس گرفتار کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لقمان نے پہلے تیل نکالنے کا پیشہ شروع کیا تھا۔ لقمان کا آباء و اجداد حضرت ایوب تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا ہسو لقمان کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں مسلم تیلی برادری کو شیخ منصوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مسلم منصوری تیلی ایک ایسی مسلم جماعت ہے جو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں پائی جاتی ہے۔ اس برادری کے بہت سارے افراد 1947 میں پاکستان ہجرت کر کے کراچی اور سندھ میں آباد ہو گئے تھے۔ صوبہ پنجاب میں بہت سارے تیلی زمیندار بھی ہیں اور بے زمین بھی، اور وہ نقد فصلوں کے فارموں، گندم یا مکئی کے کھیتوں سے کماتے ہیں اور وسطی پنجاب کے شہروں جیسے فیصل آباد، ساہیوال، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں جہاں شہری تیلیوں نے چھوٹی صنعتوں کا آغاز کیا ہے۔ فیصل آباد کا تیلی ملک خاص طور پر چھوٹے کاروبار میں کامیاب رہا ہے۔ تیلی راجپوتوں نے تیل کے علاوہ دوسرے پیشوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ تیل نکالنے کا کاروبار اتنا قدیم، منافع بخش اور باعزت کاروبار تھا کہ ہندوستان، پاک و ہند کی بڑی بڑی اقوام اور قبائل نے اسے اپنایا۔ خاص طور پر راجپوت قبائل اور اقوام جو کاروبار کو اپنانے سے پہلے یہ بھی سوچتے تھی کہ اس کاروبار کی معاشرتی حیثیت کیا ہے۔ اگر آپ تیلی برادری کی گوتھوں اور اقوام کا مطالعہ کریں تو آپ کو زیادہ تر راجپوت گوتھے اور قومیں ملیں گی جو عموماً پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر پنجاب، راجستھان اور سندھ میں آباد تھیں اور صدیوں سے تیل نکالنے کے کاروبار سے منسلک رہنے کی وجہ سے تیلی کہلاتے تھے۔ ہندو مذہب کے تیلی ساہو اور مسلم مذہب کے ملک کہلاتے تھے۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ یہ کاروبار اتنا منافع بخش اور باعزت تھا کہ معاشرے کے لوگ تیلیوں کو ساہوکار اور ملک کے لقب سے پکارنے لگے۔ یاد رہے ملک عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے ہندوستان میں صرف لفظ ساہو ہی تیلیوں کے لیے مخصوص تھا۔
पर जब मुस्लिम मजहब हिंदुस्तान में आया तो जिन हिंदू तेलियों ने इस्लाम कबूल किया वो साहू लकब जो उनकी कारोबारी पहचान लकब से पुकारा जाने लगा, पर उनकी हस्बी नस्बी पहचान तो वही रही, क्योंकि मजहब बदलने से हसब व नसब नहीं बदल सकता। इसलिए मुस्लिम और हिंदू तेलियों की गोथें ज़्यादातर मुश्तरक हैं। ख़ास तौर पर राजपूत कबाइल की गोथें और मुसलमान तेलियों में कुछ अरबी और अफ़गानी कबाइल का इजाफा होता चला गया और वो अक़वाम तेली होने की निस्बत से मलक कहलाने लगी। तेलियों को मलक कहने के बारे में मौरख़ीन एक और रवायत बयान करते हैं। क्योंकि ये बरादरी तेल के कारोबार से मुंसलिक थी, इसलिए बादशाहों के दरबार में तेल की सप्लाई किया करते थे और कारोबारी लिहाज से उनकी पहचान होती थी। इनके हाथ बहुत नरम होते थे, जिसकी वजह से इनको मलूक कहा जाता था, जिसके मैंने नरम और नाजुक के हैं, और बाद में ये लकब मलूक से बिगड़कर मलक कहना शुरू हो गया। मलक अपनी मलक बरादरी की कौमों गोथों को दूसरी बरादरियों पर खुलकर वज़ा करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मलक बरादरी में कैसी कैसी शानदार नामी ग्रामी अक़वाम और गोते शामिल हैं जिन्होंने तेल का कारोबार किया और तेली मलक होने का एजाज़ और लकब पाया। इस बात का तो आपको इल्म ही है कि तेली ना तो कोई कौम है ना ही कोई कबीला, बल्कि तेली तो हर कौम और कबीले के अफराद या ख़ानदान को कहा जाता है जिसने तेल हासिल करने का कारोबार इख्तियार किया। याद रहे कि तेल का कारोबार इतना फखरिया और समाजी तौर पर इतना शानदार था कि पूरे पाक हिंद के हिंदू मुस्लिम राजपूत कबाइल और कौमों ने इसे इख्तियार किया और बरसों बल्कि सर्दियों इस कारोबार को सर अंजाम दिया और तेली कहलाते जो इनकी कारोबारी पहचान बन गई, जबकि इनकी खानदानी या हस्बी नस्बी पहचान तो राजपूत कौमों गोथों और कबाइल की यही। इसलिए मलक बरादरी जो मुस्लिम तेली बरादरी का लकब है, इसलिए अपने नामों के साथ अपनी गोथों का आल करते हैं। तेली कई कौमों की बरादरी से तल्लक रखते हैं और अपनी खानदानी या हस्बी नस्बी पहचान को बतौर गोथ भी अपने नामों के साथ लगाते हैं। मसलन मलक मोहम्मद परवेज भट्टी, मलक साजिद अली खोखर, मलक अवैस अली चौहान, मलक शकील हुसैन सांसी, मलक असगर अली राठौर, मलक साबर हुसैन पनवार वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ हिंदू तेली राजपूत भी इस तरह अपने नामों के साथ मलक की जगह साहू का लकब इस्तेमाल करते हैं, जैसे साहू देवराज भट्टी, साहू नारायण खोखर, साहू काशीराम चौहान, साहू कबीरदास सांसी वगैरह। लेकिन मुस्लिम तेलियों में कुछ गैर हिंदुस्तानी कबाइल और खानदान भी मलक कहलाने में शामिल हैं, जिसमें अफगान कबाइल जैसे गौरी और खिलजी भी तेली होने की बना पर मलक कहलाते हैं, और कुछ अरब कबाइल से अलवी या अवान खानदानों के कुछ लोग जो तेली बरादरी का हिस्सा है भी मलक कहलाते हैं। बल्कि ये बात कहना गलत नहीं होगा कि इन अरब अलवी कबाइल के तेल निकालने के कारोबार से मुंसलिक होने की वजह से मलक लकब अपने साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि अरबों की हिंदुस्तान आमद से पहले दियों के लिए लकब साहू ही इस्तेमाल होता था और सदियों तक लकब साहू ही इस्तेमाल होता रहा। जो हिंदू मजहब के लोग तेल के कारोबार से मुंसलिक थे, जब वो मुसलमान हुए तो उन्होंने लकब साहू इस्तेमाल किया और मलक भी। लेकिन हिंदू मजहब में रहने वाले राजपूत और दीगर गैर राजपूत गोथों के तेलियों ने लकब साहू ही इस्तेमाल किया। तेली कौमों की बरादरी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वो अपनी कारोबारी पहचान यानी तेली होने की वजह से लकब साहू और मलक के साथ अपनी खानदानी या गोथ कबीला को इस्तेमाल करते हैं। दोनों मज़ाहिब की तेली अक़वाम या गोथ कबीलों की तादाद 53 से ज़ायद बताई जाती है, जो पाको हिंद के तूलो अर्ज़ में फैली हुई है। जिस तरह की तकसीम हिंदुइज़्म में की गई है वो अमूमन पेशा वराना है, ना कि नीच और कमतर होने की वजह से। हमारे माशरे में कुम्हार, लोहार और तरखान, कसाई, सुनार वो अजीम पेशे हैं जो हम सब ही हैं। एक सैयद भी लोहार बरादरी में हो सकता है और एक राजपूत भी कसाई का काम, तरखान या धुब्बी या रंग डांगरी हो सकता है। हमारे माशरे में जहालत और ख्वाह मुखा के रवायात ने लोगों को असलियत से नावाकिफ रखा है। मसलन कौम, कबीला और गोत क्या होती है और बरादरी क्या होती है। राजपूत एक कौम है, इसके कई कबाइल हैं जैसे भट्टी, राठौर, खोखर, चौहान, जोया वगैरह वगैरह। राजपूत कौम के कबाइल तकरीबन हर तरह की बरादरी में पाए जाते हैं, जैसे लोहार बरादरी में राजपूत, भट्टी भी, चौहान, खोखर, जोया, नरबन, पनवार सब लोहार हो सकते हैं। जैसे मलक बरादरी में जितनी भी कौमें मलक कहलाती हैं सब तेली बरादरी की गोते हैं। इनमें ज़्यादातर राजपूत कबाइल से तल्लक रखने वाले तेली हैं जो कि तेल का कारोबार करते थे। तेली एक पेशावर बरादरी है। जिन कौमों ने फसलों से तेल निकालने का कारोबार किया वो तेली बरादरी का हिस्सा हो गई।
इनमें ज़्यादातर राजपूत कबाइल की गोथे और कौमें शामिल हैं। बरादरियाँ गोथों से बनती हैं, जैसे तेली बरादरी, जट बरादरी, गुज्जर बरादरी, लोहार, तरखान बरादरी। और बरादरियों में सैयद कौम, राजपूत, अवान कौम, मुगल कौम के लोग तेली, लोहार, तरखान भी हो सकते हैं। याद रखें, राणा, राजा, चौधरी, मलक, खान, मियाँ ये कौमों या बरादरियों के नाम नहीं हैं, बल्कि ये बरादरियों के लक़ब हैं। राजपूत कबाइल से तल्लक रखने वाली गोथें अपने नाम के साथ राजा, राणा, राय, रामे या राव के लक़ब लिखवाती हैं, जबकि तेली बरादरी की गोथें अपने नाम के साथ मलक का लक़ब लिखवाती हैं, खासकर राजपूत कबाइल के तेली। ऐसे ही जट बरादरी की गोथें अपने नाम के साथ चौधरी का लक़ब लिखवाती हैं। ऐसे लोहार बरादरी में ज़्यादातर मुगल गोथ मिर्ज़ा बेग का लक़ब लिखवाती हैं। लिहाजा बात समझाने का मतलब ये है कि लोहार, तुलखान, तेली, कसाई कोई कौमें नहीं हैं, बल्कि पेशे हैं जो बरादरियाँ बनी, जबकि भट्टी, जोहान, खोखर ये कौम के कबाइल हैं। और इन कबाइल के अफराद बेयक वक्त हर तरह के पेशावर बरादरियों में मिलेंगी। जैसे भट्टी गोथ तेली बरादरी में मलक कहलाती है, जबकि दीगर बरादरियों में राणा, राजा, राय, रामे, राव वगैरह के अलकाबात से नवाजी जाती है। ऐसे जट कोई कौम का नाम नहीं, बल्कि जट एक बरादरी है जिसका कारोबार खेतों में काश्तकारी करना है। जट बरादरी की गोथें हैं जैसे बाजवा, ढिल्लों, विरक, गिल, भट्टा, सिंधु वगैरह। जट, तेली, लोहार बरादरियां हैं और बरादरियां कौमों से बनती हैं। एक बरादरी में कई कौमें हो सकती हैं और दूसरी तरफ एक कौम कई बरादरियों में हो सकती है, लेकिन हर शख्स और ख़ानदान की कौम और बरादरी का पता मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन जैसे तेली बरादरी के मुख्तलिफ ख़ानदानों की बरादरी तो एक ही होगी, लेकिन उनकी कौमें अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कोई खोखर है, कोई भट्टी है, तो कोई चौहान है, रठौर, पटनवार, टर्बन, गोथों कौमों के तेली सब मलक का लक़ब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।